because I detest Maran. But actually, the father has not nominated Maran to negotiate. Now, it's like a banana republic, the way the cabinet But why has Maran become the face? They all No, hate Maran. he is not. I know. No, but the Congress is under the impression, they've already apparently indicated to Maran that the Prime Minister will not give infrastructure berths to DMK, but he himself is desperately pushing for an infrastructure berth for himself. Right. Now, the problem is that there is a leader, which is Kani's brother, which is Aragiri, who's won that election, and he's a mass leader. Okay. Now, what has apparently Maran has gone and indicated to Congress is that he will accept an MOS independent, and you leave it with me, everything will be okay. Which gave Balu, Raja and Maran cabinet posts independent to Aragiri and MOS to Kani. Okay. Now, Aragiri is a very, he's a mass leader. He controls half of Tamil Nadu for Karunanidhi's point of view. He's far too senior for Maran. So what he has told his father that if you make Maran a cabinet minister, I will not come into the cabinet. And the father cannot afford to upset him because of his position. Yeah. Right now, the Congress doesn't seem to be understanding this. So who should they talk to? They need to talk directly to Karunanidhi. They need to talk to Kani. Sonia spoke to him yesterday, no? No, she didn't speak to him. Only Prime Minister spoke to him, even that was Kani was translating for him. It was very brief that, let's try and resolve this issue. There's nothing at all and whatever. They need to get Ghulam Nabi Azad to speak to Kani Modi. Seriously, that's the only thing that will work, and Kani will take them to her father. I won't get through to Sonia in the short term. Let me try and get through to Ahmed. No, but they need to speak to Kani Modi. Then Kani Modi will take him to her father directly. Okay. He has no problem with 3 cabinet berths at all. In fact, it is the Congress that messed it up. Had they not kept on insisting and kept on pushing Maran forward, they themselves have been pushing Maran forward. They would have left it to Raja and Balu even if they wanted, or Raja and Aragiri, and Kani would have taken independent. It was Congress that started this whole Maran dialogue. Oh, I had the impression the DMK nominated Maran. No, they did. They sent a list earlier with 5 portfolios with Maran's name because father was pushed small side, so he had to send a list with everybody's name on it. But he was hoping that Congress would come back and say, okay, we will accept Raja or we will not, or not Raja, we'll give you only 3 portfolios, right? But they have not been able to, the communication that's been happening within Congress, the DMK, has been completely warped. They're talking to the wrong guys. Okay. Let me try and get through to Ahmed. The simplest way is Kani Modi. Yeah. Kani Modi will take them to her father directly. Okay. And they can have this discussion. Whatever are their concerns, whatever they want to say, let them say it in front of... डाले हुए हैं, लेकिन कुछ हमने आपके सामने यहाँ... They don't want Maran. मैं चलूंगा दोनों पत्रकारों के साथ, हमारे साथ जो जुड़े हैं, जो 4-5 बातें इसमें से ध्यान में आई है। पहली कि वीर सांघवी और नीरा राडिया की कितनी गहरी है, एक दूसरे को फर्स्ट नेम के शॉर्ट नेम से भी बुला रहे हैं। और दूसरा, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हाँ मुझे अभी सोनिया को मिलना था लेकिन मैं जयपुर में हूँ, या फिर सोनिया को इसमें कुछ समझता नहीं है, राहुल से तो मैं जब चाहे मिल सकता हूँ, क्या इसमें क्या सच्चाई है? मनोज जी। ये वी सांघवी ने आज के हिंदुस्तान टाइम्स में जो सफाई के तौर पे लिखा है अपने काउंटर पॉइंट, मतलब जो काउंटर पॉइंट आज उन्होंने बंद किया है, उसमें आखिरी मौका जो उनको मिला है, उसमें जो उन्होंने लिखा है, उसमें अपने बचाव में वो ये कह रहे हैं कि देखिए साहब 5000 इस तरह की बातचीत हैं और ये जो लीक की गई हैं अधिकारियों द्वारा, ये केवल 110 बातचीत लीक की गई हैं और जो मेरी बातचीत दिखाई जा रही हैं उसमें कुछ शब्द तो दिखाए जा रहे हैं और कुछ शब्द निकाल दिए गए हैं। अब इन्होंने ये नहीं कहा है कि जो शब्द दिखाए जा रहे हैं वो मैंने नहीं कहे, ऐसा नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे कुछ शब्द निकाल दिए गए। तो अरे भैया, मैं अगर आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाता हूं, उसके लिए मैं 60 घंटे शूटिंग करता हूं, तो आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाता हूं, तो मतलब उसमें तो बहुत सारे शब्द निकल जाएंगे ना। तो सारे के सारे शब्द कैसे, मतलब आप बताइए ना कि 5000 वार्तालाप सुनने के लिए आप तैयार हैं, आपके पास टाइम है, सुरेश जी के पास दिखाने का टाइम है, तो एडिट तो होगा ही होगा। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा है कि जो दिखाया जा रहा है वो झूठ, मतलब वो मैंने नहीं कहा, ये नहीं कहा है। तो इस तरह का घुमा फिरा के बचाव करने के लिए अपना, मतलब वो एक कोई दलील पेश कर रहे हैं। मनोज जी एक कॉलर, महिला कॉलर कोई हमारे साथ जुड़ी हुई, उनसे बात करते हैं, साथ में हम बातचीत भी करते रहेंगे, कुछ कॉलर को भी लेंगे। बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए क्या कहना चाहती हैं? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि इस कार्यक्रम के लिए
हेलो। हाँ, बोलते रहिए आप। हाँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले एक जमाना था कि हमें सिर्फ राजनीतिक नेता ही भ्रष्टाचारी दिखाई देते थे और उन पर कीचड़ उछलना बहुत एकदम आसान था, लेकिन अब दिखाई देता है कि पत्रकार भी इस लाइन में खड़े हैं, वो भी शामिल है। और दूसरी बात, ब्यूरोक्रेट भी हम छूते नहीं है। इनकी मिलीभगत के सिवा कोई भी नेता कोई भी भ्रष्टाचार नहीं कर पाता है। तो आपको तो मैं धन्यवाद देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप उनकी भी पोल खोलिए। बिल्कुल, तो हम इसीलिए आपको दिखा रहे हैं। धन्यवाद। आप कहां से बोल रही हैं? धन्यवाद। महाराष्ट्र से कॉलर थी और प्रतिक्रिया दे रही थी कि ऐसे सारे लोगों को आप सुनवाइए, दिखाइए, लोग देखने को तैयार है, क्योंकि इनको समझने के लिए इनको सुनना जरूरी है। यशवंत जी, जिस तरीके से वीर सांघवी कह रहे थे कि मैं राहुल जी को जब चाहे तब मिल सकता हूं या सोनिया को नहीं समझता है वगैरह वगैरह, क्या ये इतना प्रभाव सचमुच होता है या कुछ दिखाने का भी है? देखिए, मैं सुरेश जी में बताना चाहूंगा कि जो स्टेट कैपिटल्स हैं वहां मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने पत्रकार हैं और सत्ता के गलियारों में जिनकी अच्छी पैठ है, तो उन्होंने अपने घरों में मुख्यमंत्रियों की तस्वीर लगा रखी है, केक खिलाते हुए या उनके साथ टहलते हुए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा नाम इन पत्रकार का है, अपने घर में जो कि सरकारी राष्ट्रीय बंगला है वहां पे जो ड्राइंग रूम में उन्होंने तस्वीरें लगा रखी हैं, उसमें मुख्यमंत्री के साथ केक काटते हुए है। एक लखनऊ के पत्रकार है, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं। तो मुझे लगा कि ये ऐसा क्यों है। पर पहले कभी जो पत्रकार होता था तो खबर करने जाता था तो सोचता था कि उसे कोई न देखे जाने, ताकि वो असली खबर निकाल सके वहां से, या वो सत्ता के लोगों से बात नहीं करता था, नेताओं से बात नहीं करता था, सर तो कहना बहुत दूर। आपको याद होगा कि पत्रकार जो है किसी को सर नहीं कहता था, वो नाम से बुलाता था। एक दौर वो था। लेकिन अब क्या है कि अब सत्ता की गैलरी में, सत्ता के गलियारों में हमारी पैठ है, वहां पे हम लोगों से मिल रहे हैं, सर करके पुकार रहे हैं, गले लग रहे हैं, बेडरूम में जा रहे हैं। तो इससे वो बाहर मैसेज देते हैं जो ढेर सारी जो कंपनियां हैं देशी विदेशी, जो कि चूंकि इस समय वही मैंने कहा कि उदारीकरण के दौर में जो एक कंपनियों की बात आई हुई है, निवेश हो रहा है, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तमाम योजनाएं चल रही हैं, तो उन्हें पास कराना है, उनको फाइल लेना है, उनसे आगे बढ़ानी है फाइल को ब्यूरोक्रेट्स के यहाँ, मंत्रियों के यहाँ। तो इसमें जो लॉबिस्ट हैं, जो लॉबिंग करने वाले लोग हैं, नीरा राडिया जैसे लोग हैं जो कि अंबानी टाटा के लिए लॉबिंग करती हैं, उनकी नीतियों को पास कराती है, तो वो लोग ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो नेताओं के बेडरूम तक पहुंच रखते हों, उनके साथ उठते बैठते हों। तो उसमें ये लोग जो काफी नामचीन लोग हैं, जो कि जिनके पास बड़े मीडिया हाउस हैं, जिनकी पहुंच ज्यादा है, जैसे बरखा दत्त हैं, वो देश भर में देखी जाती हैं, आइकॉन है। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा नेता मंत्री भी चाहेगा बरखा के साथ इंटरव्यू देना, बातचीत करना। तो बरखा की जो रेपुटेशन है, प्रभु चावला की जो रेपुटेशन है कि वो सत्ता के गलियारों में पैठ रखते हैं, यहीं से दलाल उन्हें डोरे डालना शुरू करते हैं, पकड़ना शुरू करते हैं। और मति भ्रष्ट का दौर है, तो वो दलालों के चक्कर में फंस गए। इन्हें अंदाजा नहीं होगा कि जिस मीडिया की ताकत के बल पे ये सत्ता में दखल रखते हैं, दलालों के साथ उठते बैठते हैं, उसी मीडिया के द्वारा एक दिन इनका जो है श्राद्ध किया जाएगा, और वो समय उसकी शुरुआत हो चुकी है। मनोज जी, जिस तरीके से कारपोरेट का युग की बात कर रहे हैं यशवंत जी, क्या ये कंपनी अब बहुत बड़ी हो रही है, इतनी बड़ी कि वो केंद्र सरकार से भी ज्यादा मुनाफा कमाने लगी है, क्योंकि सरकार तो लॉस में है? तो क्या इसका भी परिणाम मीडिया पर हो रहा है या सारे क्षेत्रों पर हो रहा है? जी बिल्कुल। अब देखिए ना, ऐसी मल्टीनेशनल्स जिनका की जो एनुअल बजट है वो हमारे पूरे जीडीपी से, पूरे भारत के ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ज्यादा, तो जाहिर है कि वो पैसे की ताकत कितनी। अब नीरा राडिया ने अभी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 9 घंटा उनकी ग्रिलिंग की, तो उसमें 60 करोड़ का तो उन्होंने चेक का पेमेंट वैसे ही कबूल कर लिया। अच्छा देखिए, ये मतलब केवल 60 करोड़ की बात नहीं होती है। अक्सर जब आप जिनसे दलाली करवाते हैं, अक्सर आप उनको पेमेंट कैश में देते हैं या किसी और तरीकों से देते हैं, कहीं विदेश घुमाने के लिए, ये वो। तो मतलब सारा कुछ चेक से नहीं होता है, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो छुपी हुई भी होती हैं। और भ्रष्टाचार मेरे ख्याल से भारतीय कानून में नहीं आता है, क्योंकि सिंगापुर में फ्लैट अगर दे दिया गया लीज पे 99 साल के किसी जर्नलिस्ट को, तो मनोज जी फिर वो भारतीय कानून में कैसे आता है रिश्वतखोरी? तो हम लोग उसे मानते हैं जो चौराहों पे सिपाही 10 रुपये लेता पकड़ा जाता है, लेकिन जो बड़े लोग जो दलाली कर रहे हैं, जिनके पैसे बाहर ही जमा हो जाते हैं स्विस बैंक में, या सिंगापुर में उनको जो फ्लैट मिल गया 99 साल के लीज पे, तो मुझे लगता है कि अब रिश्वतखोरी के तरीके भी बदल गए हैं। सही बात है। बल्कि अब देखिए ना, जैसे कोई किडनैपिंग करता है, तो अब किडनैपिंग करने वाला जो है वो बजाय इसके कि वो यहां पे रिश्वत रैंसम ले, हवाला के जरिए, हाँ, वो कहेगा कि आप
हमारे स्विस बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दीजिए तो हम आपके बच्चे को छोड़ देते हैं। तो अब मतलब ये तरीके भी बदल गए हैं पैसा लेने की, सुरक्षित तरीके हो गए हैं पैसा लेने के, तो ये भी एक बात है। मतलब लेकिन पैसा लिया गया दिया गया ये तो अभी सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए ये बात कही नहीं जा सकती पक्के तौर पे। लेकिन इतनी बात तो बिल्कुल साफ है कि कोई ना कोई इंटरेस्ट तो जरूर होगा, वरना आप इस तरीके से किसी से मतलब ऐसे क्यों बात करेंगे और उसके आदेश का पालन क्यों करेंगे अगर आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो। मनोज जी, मैं यहाँ पे एक आपको रोकूंगा एक चीज के लिए। मैं चाहूंगा कि जैसे आरटीआई है एक बड़ा हथियार है जिसके जरिए जनता जो है देश के नेताओं अधिकारियों से सवाल करती है, उनके बारे में डिटेल मांगती है, मिलता भी है, बहुत खुलासे होते हैं। तो क्या मीडिया को अब इस पूरे घोटाले खुलासे के बाद मुझे लगता है कि आरटीआई के दायरे में लाने की पहल करनी चाहिए। और इसके लिए एक अफरोज आलम साहिल हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने पत्र लिखा है बकायदे कि इन लोगों की, जिन लोगों के नाम टेप में आए हैं, बरखा दत्त हुई, राजदीप सरदेसाई, जो इसलिए उन्होंने नाम लिखा है क्योंकि वो मालिक हो चुके हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं, प्रभु चावला हैं, वीर संघवी हैं, इन लोगों की संपत्ति घोषित की जानी चाहिए। कि आखिर वही सवाल है कि कितना पैसा इन लोगों के पास वैध है और इन्होंने पत्रकारिता में आने पे कहां से कितनी तनख्वाह ली और अब कितने के मालिक हैं। तो क्या आरटीआई वाला एक मुद्दा, मुझे लगता है मनोज जी आप चूंकि वरिष्ठ हैं और इस पे गाइड कर सकते हैं हम लोगों को। बहुत ही सटीक बात है ये। और दूसरी बात ये भी देखिए, जैसे कि आरकेएस राठौर रुचिका के इस बारे, रुचिका से बदसलूकी का जिनके ऊपर तो जैसे ही उनके ऊपर ये मुकदमा शुरू हुआ तो एकदम से आवाज, मीडिया ने आवाज उठाई कि साहब इनके जो पद हैं, मतलब जो इनके जो मेडल्स हैं वो छीन लेने चाहिए वगैरह वगैरह, और सरकार ने कान दिया उनकी बात पे। तो ये अब जिनके नाम आ रहे हैं, क्या उनके बारे में भी ये आवाज नहीं, जो सुरेश जी ने कहा कि उनका भी पुतला फूंकना चाहिए, तो क्या ये आवाज भी नहीं उठनी चाहिए कि भाई आपको अगर पद्मश्री मिला तो आपका भी, आपकी पदवी भी छीननी चाहिए? बिल्कुल वापस होना चाहिए, ये मांग उठाई जानी चाहिए कि जिन सेवाओं, जिस मतलब मर्यादा के लिए उनको पत्रकारों के जो एक मापदंड होते हैं उनके लिए दिया गया है उनको पद्मश्री, तो उसको भी वापस किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मांग अभी उभर कर आई है चर्चा में से कि बरखा दत्त और वीर सांघवी को जो पद्म पुरस्कार मिले हैं उसको वापस करें। हम दर्शकों को हमेशा की तरह बिंदास बोल के स्टाइल में कहेंगे कि आप हिंदुस्तान टाइम्स, एनडीटीवी के फोन नंबर्स पर फोन करिए, अपनी अपील करिए। साथ ही आप गृह मंत्रालय से रिलेटेड ये पुरस्कार होते हैं, आप होम मिनिस्ट्री के फोन नंबरों पर जाकर भी अपनी मांग को दोहरा सकते हैं, अपना फैक्स कर सकते हैं और गृह मंत्रालय का जो कार्यालय है वहां पर भी अपने पत्र भेज सकते हैं। और साथ साथ में अब आपने यहाँ पर अखबारों में पत्र लिखिए, अखबारों में इसको न्यूज को छपवाइए, क्योंकि कम से कम जिले और राज्य स्तर के कुछ अखबार ऐसे होंगे जो जरूर ऐसे षड्यंत्र का हिस्सा नहीं होंगे, इस आवाज का वो हिस्सा बन सकते हैं। और इस मांग को देश भर में अगले कुछ दिनों में बड़े जोर शोर से उठाया जा सकता है कि बरखा दत्त और वीर सांघवी को मिले पद्म पुरस्कारों को वापस लिया जाए। साथ साथ में उनके खिलाफ एफआईआर किया जा सकता है और देश भर में ऐसे कई एफआईआर के बाद इनको तब पता चलेगा कि किसी के खिलाफ बोलना कितना आसान है और जब खुद पर बीत आती है तो क्या होता है। ऐसे में ये और राज भी खोल सकते हैं और इस डर से इस तरीके का भ्रष्टाचार जो बाकी लोग भी करते हैं वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन साथ साथ में हम आपको और भी टेप सुनाएंगे जो कि खास जरूरी है। मेरे सामने एक एसएमएस आया है, शीला नारायण चेन्नई से एसएमएस कर रही है कि बरखा का बुरखा फटने की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये भी हम जल्दी करेंगे ब्रेक के बाद।